Morning, everyone. Class, जो भी हमने किया है सेमेस्टर में, वीडियो बंद करो। let's start. Can you listen to my voice? Yes, sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay. So let's start. We have done 4 novels and 1 short story, if I'm not mistaken. And I've given you questions out of all these 5. To the lighthouse से एक क्वेश्चन दिया है, पैसेज टू इंडिया से एक क्वेश्चन दिया है, 1 question from the alchemist and 1 from the black book and 1 from the telltale heart. To the lighthouse, I've given you these 4 questions. ये 4 क्वेश्चन है जो आपको to the lighthouse में से दिए गए हैं. And these 4 questions, out of these 4 questions you have to attempt any one of them. इनमें से आपने किसी एक को attempt करना है. Out of these 4 you have to attempt any one of them. Because Virginia Woolf as a critically comment on the technique that has been used in the novel To the Lighthouse. Technique पर आपने comment करना है. Of prominence with reference to the text of the novel. Theme of prominence क्या है इसमें? And write about the major characters in the light of what you have understood after studying this novel. You have to write according to your understanding with reference to the text. तो इन चारों में से आपने किसी एक को अटेम्प्ट करना है और आई होप ये मस्ट हैव डन आप कर चुके होंगे. Any problem? If anybody has any problem, so that student can ask me right now about it. इनमें से किसी एक सवाल को करना है. 1 क्वेश्चन कैरी 25 मार्क्स. सॉरी, ये एक सवाल है. Sir, your voice is not clear. 25 मार्क्स. अभी आवाज कैसी आ रही है? How is my voice now? Sir, there is someone else. One more mic is on, therefore your voice is not clear. So ask them to just mute their mic. या काइंडली जिसका ये फैसल मुमताज, आप काइंडली म्यूट कर दें. म्यूट योर माइक. Mute. हाँ, म्यूट कर देना. जब आपको बोलना हो तो आप इसको अनम्यूट कर लीजिएगा, अदरवाइज म्यूट, क्योंकि आपके घर से शोर की आवाज़ आ रही है. जिनके यहाँ साइलेंट रूम है, where there is complete silence, so that student can keep his or her mic unmute, otherwise keep your mic mute. Okay, so I was telling you about this 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन है. ये 4 क्वेश्चन है जिनमें से किसी एक को आपने अटेम्प्ट करना होगा. एंड दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू फ्रॉम टू द लाइट हाउस. दिस इज क्लियर. ये मैं आपको बताया था और के साथ भी आपको मेंशन कर दूं कि ये
Yeah, or means option, choice. So all these are carrying 25 marks. So ये means जो भी आप करेंगे तो वो 25 मार्क का होगा. Then we have Passage to India. Up from Passage to India, this is a novel from which I have given you two questions. How do you see the relationship between English and Indians through this novel? Write your answer with reference to the text, or या फिर attempt the other one. What do Adela and Mrs. Moore learn from their visit to India? How is their relationship between with Dr. Aziz in the novel? ये भी आपके पास कितने का है? 25 मार्क का है. It is also carrying 25 marks. ये दोनों आपके पास 25 marks के हैं. 50 marks आपके यहाँ से. And then there is another question that is from the Alchemist. Alchemist में से आपको कौन सा सवाल क्वेश्चन दिया था? Can you remind me of the question which I gave you from the Alchemist? Yes, can you remind me the question that I gave you from the Alchemist? Yes, can anyone remind me? Can anyone remind me about the question which I gave you from the Alchemist? सर आपने शायद लास्ट क्लास में बताए थे तो उसमें तो मैं नहीं थी, बाकियों का पता नहीं. आप लोगों को भेजा तो है, वीडियो वगैरह भेजा, आपने देखी नहीं क्या? चलिए और किसी को नहीं मालूम, मतलब आप लोगों को वीडियो देखी भी नहीं है. ओके. आप में से किसी को नहीं मालूम? ढूंढना पड़ेगा फिर से. Anyhow, tell me about yesterday's questions then. कल का बता दें क्वेश्चन. Yesterday's question आप लोगों में से कोई पढ़ते वगैरह नहीं क्या? No one is asking any question. No one is participating. So, rise in the 20 I gave.
these are the two questions which you have been given related to The Alchemist. Write about the significance of dream in this novel, keeping in mind the literary trends of 20th century, and The Alchemist. And how do you see the characters play their part in this novel? Explain it with reference to the text. So in this novel, the most important theme is dream, and it is all about dreams, supernatural elements you will find in this novel. So this is a question which is again of 25 marks. ये भी सवाल है जो कि 25 marks का है जो आपने करना है. Any question? सवाल है किसी को कुछ पूछना हो तो they can ask me. Have you all done your assignments? आप सब लोगों ने अपने assignments वगैरह कर लिए क्या? सर दूसरे सब्जेक्ट्स के जी आप लोग मतलब आप you have been given assignments from all 5. So how many? I hope you must have done first 3. पहले 3 के 2 हो चुके होंगे. Am I right or no? You can submit me after 20th of this month. 20 तारीख से आप सबमिट करवाना शुरू कर दीजिएगा. ठीक है? Complete your assignment. उसके बाद है आपके पास द ब्लैक बुक. ब्लैक बुक से मैंने आपको दिया था. कौन सा दिया था? राइट a critical note on the black book from here. And इसके जो मार्क्स हैं वो मैंने आपसे कहे थे कि it is of 3 मार्क्स. और इनमें मैंने वर्ड्स की तादाद की क्या कही थी आपसे 600. बाकी के जो थे वो 1200 थे. 600 words. So you have to write a critical note on the novel. Write a critical note on the novel. The novel name is The Black Book. This is what you have from the novel Black Book. You have to read it, and after reading it, you have to tell what you have understood with reference to the text. वैसे तो आपको मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी हैं about the novel. It's a 20th century novel. Again, it deals with, of course, psychological aspect. Identity is theme of identity is very important over here. And from the very beginning till end to end, you'll find one dominating character is this, the protagonist of the novel, who's search, who is who looks for his wife, and his Sir, your voice is not clear. आवाज मेरी कैसी है? ओके यस. तो इस पर अगर किसी को कुछ पूछना तो मुझसे पूछ सकता है. यस सर आवाज नहीं आ रही आप लोगों के माइक में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है? तो आवाज सही जा रही है. मेरी तरफ से तो आवाज बिल्कुल सही जा रही है बिकॉज आई कैन सी हियर वॉइस इज क्लियर. सबको प्रॉब्लम हो रही है आवाज में या एक आध को प्रॉब्लम आ रही है? सर कभी बिल्कुल ठीक हो जाती है और बीच बीच में बिल्कुल धीमी हो जाती है, आती नहीं है बस. चलिए इसको मैं देखता हूँ थोड़ा. ये फर्स्ट टाइम हो रहा है ना, तो वैसे प्रॉब्लम हो नहीं रही थी. मैंने हालांकि अपना चेंज भी किया है. ओके. और ये आपके पास है द ब्लैक बुक से. और इसके बाद लास्ट वन इज शॉर्ट स्टोरी. शॉर्ट स्टोरी में से क्या था? कैन एनीवन टेल मी अबाउट द शॉर्ट स्टोरी? शॉर्ट स्टोरी में मैंने आपको क्या दिया था करने के लिए? हाँ भाई, शॉर्ट स्टोरी के बारे में कौन बताएगा?
पार्टिसिपेट आप में से कोई नहीं कर रहा, कोई बोल ही नहीं रहा, फायदा क्या हुआ ऐसी क्लास रखने का? तो उससे तो कहते मैं रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को भिजवा देंगे। Sorry sir, but I have missed some classes. ठीक है, जो क्लासेस आप मिस कर चुके हैं उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको रिकॉर्डिंग भेजी गई है, यू मस्ट हैव वॉच द रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, फिर वो यूट्यूब में भी डाल दी जाती है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसमें ये कहना कि मैं मिस कर गया तो ये आपका अपना कसूर है, ठीक है। यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग, आई सेंड यू रिकॉर्डिंग टू योर ग्रुप, एंड यू कैन ऑल्सो वॉच द रिकॉर्डिंग फ्रॉम यूट्यूब। सो डजंट इट्स नॉट अ थिंग टू मेंशन दैट सर मैं मिस कर गया कुछ, आप देखें ना उससे 20-25 मिनट की तो रिकॉर्डिंग है, ज़्यादा तो है भी नहीं। तो इसका जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ, रिमाइंड कर देता हूँ। लेट मी रिमाइंड यू, राइट रिव्यू ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। टेल आपने करना है इसका, एंड इट कैरीज 10 मार्क्स, it will carry 10 marks, and you have to write a review of 500 words. 500 words, you can see I'm making it large. ये आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है, फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी टू द शॉर्ट स्टोरी नेम इज द टेलटेल हार्ट. It will carry 10 marks, and you have to write a review of the short of this story in 500 words. तो ये आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन था ऑफ योर असाइनमेंट. So you have to write all these you have to attempt all these questions, or you have to write the answer to all these questions, and then you have to put them in one file. ये ना कि आप इनकी सबकी अलग अलग फाइल बनाए, एक ही फाइल में सबको आप कॉपी पेस्ट करके कर दीजिएगा, एंड देन राइट द नेम ऑफ द फाइल. जो फाइल का नाम होगा वो अपने नाम से आप कर दीजिएगा. फॉर एग्जाम्पल नेम इज़ फाइज़ा, तो राइट फाइज़ा, और अपने क्लास का नाम भी साथ मेंशन कीजिएगा, फाइज़ा MA और BS, जो भी आप MA फर्स्ट सेमेस्टर, BS जो भी आपका वो, एंड लाइक दिस, ओके. और वो हो सके तो आप बीच में सब्जेक्ट का नाम भी लिख लीजिएगा, एंड देन यू शुड सेंड ईमेल टू मी. ईमेल में भी चीज़ों को मेंशन कर दीजिएगा. डोंट ओनली डायरेक्टली ईमेल टू मी, मतलब आपने अटैच करके ईमेल कर दी, उसमें लाजमी लिखिएगा हाउ टू स्टार्ट, डियर सर इट्स मी जावेद फ्रॉम MA फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड और थर्ड जो भी आपका सेमेस्टर उससे, एंड माय कोर्स इज 20th century fiction and non fiction, and it is my assignment which I am submitting to you. थैंक यू वेरी मच. इस तरह से आपने एक छोटा सा नोट लिखकर अपना ईमेल मुझे सेंड करना अटैच करके. इज दिस क्लियर? सर एक और मसला है कि हम टाइप नहीं कर सकते. कुछ स्टूडेंट्स के पास ये मसला है कि भाई वो टाइप नहीं कर सकते, तो सर वो हैंड रिटन नोट भेज सकते हैं अगर आप एड्रेस भेज दें तो अपना घर का. हैंड रिटन क्या मैं आपसे कहूँ, हैंड रिटन घर के एड्रेस से भेजना. टाइप तो यार आप कोशिश करें टाइपिंग की, तो ये तो एक ज़रूरी चीज़ है भाई. चलें, अब आपके पास हैंड रिटन. सर टाइप तो कर सकते हैं, मगर किसी के पास ये मसला है कि भाई उसके पास वो नहीं है, लैपटॉप वगैरह या कंप्यूटर वगैरह नहीं है, ऐसा सोर्स नहीं है, तो वो मजबूरी में करना पड़ेगा. मैं फिर आपको एड्रेस बता दूंगा, तो उस पर आप फिर भेज दीजिएगा, ठीक है, और सील करके प्रॉपरली भेजिएगा. इट शुड नॉट बी डिस्क्लोज टू एनीवन एल्स, ठीक है. मैं आपको एड्रेस बता ओके, दूंगा, थैंक यू. लेकिन कोशिश यही करें कि यू शुड सेंड ईमेल टू मी. बल्कि यार मुझे इसका कंफर्म नहीं है. आई विल टॉक टू मैडम शाजिया, आई विल टॉक टू मैडम फरियाल, इफ दे गिव इफ दे अलाउ देन आई विल टेल यू, क्योंकि मेरे ख्याल से एक कॉपी आपने उनको भी तो भेजनी है. I think you have to send one copy to them and one to me. I will talk to them, then I will inform you, right? फिर मैं ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा कि you have also this way to send your assignment. अभी तो टाइम है हमारे पास, ठीक है. तो आप अपने असाइनमेंट पे काम करें. Today is 15, so you can start sending me your assignment after 20 तारीख के बाद आप लोग भेजना शुरू कर दीजिएगा, and 24th is the last date of your submission of submitting assignment.
और 27 को हमने रिजल्ट जमा करवाने। तो जब आपके असाइनमेंट हमारे पास आएंगे, वी विल चेक योर असाइनमेंट, देन वी विल राइट योर मार्क्स एंड देन वी हैव टू सबमिट योर मार्क्स शीट टू द डिपार्टमेंट बाय 27, ठीक है। तो 20th of this month के बाद you can start sending your assignment. Any other question? सर जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन है 25 मार्क्स के, उनकी वर्ड लिमिट अगर मिनिमम जैसे हम करें तो क्या होगी? मतलब उससे कम हमें नहीं करने, मतलब उससे ज्यादा 1200 कर वर्ड्स सकते हैं, वो क्या होगी? तो 1200 वर्ड्स आपने करने होंगे। 1200 से अगर कम आप करेंगे तो 1150 हो जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा तो 1100, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके सर। और ज़्यादा से ज़्यादा 1300 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए वर्ड लिमिट तो आपको हर जगह फॉलो करना पड़ेगा। आप CSS की एग्जाम्स में बैठे हैं, वहाँ पे आप अपनी मर्जी से ऐसे नहीं करेंगे। आपको कहा जाएगा कि यू हैव टू राइट द एसे ऑफ 1500 वर्ड्स, 1200 वर्ड्स, 1300 वर्ड्स। और अक्सर लोग क्या करते हैं, ऐसे कोई छोड़ा देते हैं इससे करने को। तो यू हैव टू मैनेज टाइम। टाइम इज अ की एवरीवेयर। कहीं 2 घंटे का पेपर है तो कहीं 3 घंटे का पेपर है, कहीं 1 घंटे का पेपर है। तो अकॉर्डिंग टू द टाइम वी हैव टू मैनेज आवर थिंग्स। और सर आई वन मोर क्वेश्चन कि जब हम वर्ड पे डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो ये हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं, तो एक ही डॉक्यूमेंट पे हम एक ही फाइल मतलब एक क्वेश्चन you have to mention, you have to write type only in one file. भले आप अलग अलग टाइप कर लें, doesn't matter, it doesn't make any difference. You can type separately, लेकिन जब आप भेजने लगेंगे ना तो आपने उनको एक ही फाइल में करना है। कॉपी पेस्ट पता है ना आपको उसका करना है। नए पेज से शुरू करना है, एक सवाल जब खत्म हो तो फिर नए पेज से दूसरे सवाल को आपने शुरू करना है, फिर तीसरे को, चौथे को, पाँचवें को। उन सबको एक ही फाइल में रख के भेजेंगे तो मेरे ख्याल से ये तकरीबन एक ही फाइल में जब आप भेजेंगे तो ये 20-25 पेजेस बन जाएंगे, ठीक है। तो मतलब अगर हमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स को एक ही फाइल मतलब एक फोल्डर बनाना नहीं आ रहा, तो हम एक ही डॉक्यूमेंट में सारे सवाल करते हैं, जैसे एक सवाल जैसे एंड हो तो नेक्स्ट पेज से हम नया आप क्वेश्चन थोड़ा स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आपको बहुत कुछ इसमें आ जाएगा। और आपको भी आना चाहिए, इसमें पूरा सेमेस्टर ऐसे ही गुजरेगा, गुजर चुका है। और आगे भी मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग रेगुलर क्लासेस दे पाएंगे, यही ऑनलाइन चलेगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को आप अपने आप को यूज़ टू आपको करना होगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी में रेगुलर बुलाएंगे, थोड़ी ज़्यादा बुलाएंगे तो मैं कहा था प्रेजेंटेशन के लिए हो गया कुछ। तो ऑनलाइन एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आपको अब आना चाहिए, ठीक है। जी सर। और आप एक ही में अटैच कर दें और या डायरेक्टली उसमें कर लें, आपकी मर्जी। लेकिन एक साथ करके दीजिएगा, अलग अलग मत दीजिएगा, वो फिर मसला हो जाएगा। सर आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, प्लीज़ ऊंचा बोलें। एक ही में करके दीजिएगा, अलग अलग मत कीजिएगा, क्योंकि उससे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 300-350 स्टूडेंट्स हैं जिनको मुझे डील करना है, बल्कि ज़्यादा ही है स्टूडेंट्स ना, 400 के करीब है। अब मिसाल के तौर पर सबको सब ने मुझे ईमेल करनी है। अब अगर वो मुझे ईमेल करेंगे सब और अलग अलग करके ईमेल करेंगे तो खुद बताएं मेरा क्या होगा। इसलिए थोड़ा सा ये आप लोग आप अपना जब ईमेल करेंगे उसमें छोटा सा नोट लाजमी लिखिएगा, ठीक है। नोट लाजमी हेलो। ईमेल एड्रेस जिस पे भेजना है आप वो हमें शेयर कर देंगे ना? हाँ वो तो मैं आपको बता दूंगा, अपना ईमेल एड्रेस बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि यू मस्ट लीव अ नोट। आपने वहाँ पर ईमेल एड्रेस में अपना नोट लाजमी मेंशन कीजिएगा और उसके थ्रू जो है मुझे पता चलेगा कि यू आर फ्रॉम दिस ईमेल के। सर आपकी वॉइस बिल्कुल हल्की हो गई है। मेरी आवाज़ आ रही वक्तावर? हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही। हाउ इज माय मुझे भी सर की नहीं आ रही। हाउ आप कैसी आवाज़, कैन यू जी लिसन? सर सर अब बहुत ठीक हो कम है। गई है। हाँ तो ये अब मैंने माइक चेंज किया है, ठीक है। वो भी नया माइक था लेकिन पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। बाकी तो वॉइस क्लियर है। अच्छा बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप लोगों के पास माइक जो है उनमें प्रॉब्लम होती है, तो उसको भी आप लोग चेक करते रह करें वो फ्रॉम टाइम टू टाइम। एनी हाउ तो एक ही फाइल में आपने सबको अटैच करना है। प्लस सर मैं अभी आई हूँ, आप रिपीट करेंगे? बेटा बहुत कुछ आप ही लोगों से बातें हो रही थी, अब मुझे तो खुद भी याद नहीं मैंने क्या, लेकिन मैं आपको सम अप कर देता हूँ कि हमने डिस्कस किया है कि ये क्वेश्चन है आपके सामने विच आई हैव ऑलरेडी गिवन एंड डेडलाइन मैंने आप लोगों से कहा था कि 24 की है एंड यू कैन स्टार्ट सबमिटिंग योर असाइनमेंट बाय 20 ऑफ दिस मंथ, यानी कि इस महीने के 20 से आप सबमिट कर सकते हैं। और सबको एक फाइल में करके भेजिएगा, ठीक है।
और जब आप भेजें तो ईमेल में लास्ट मेंशन छोटा सा नोट कीजिएगा कि डियर सर दिस इज जावेद और दिस इज फाइजा फ्रॉम दिस एंड दैट क्लास यूनिवर्सिटी ओके सर। और आई एम सेंडिंग यू माय असाइनमेंट। ठीक है सर आपसे एक क्वेश्चन था मेरा। जी। सर जैसे हम लोग तो पहले से पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ों का अंदाज़ा है और कुछ हमारे लिए भी नई चीज़ें हैं, लेकिन जो एमए वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी कुछ नई चीज़ें हैं। तो वो जैसे क्रिटिकल नोट आपने दिया है तो उनको तो पता ही नहीं है, इवन हमें भी नहीं पता कि क्रिटिकल नोट होता क्या है। तो अगर हम उस पर लिखना शुरू भी करें तो वो बिल्कुल एज इट इज़ वैसा नहीं होगा जैसा आप चाह रहे हैं, तो सर वो आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। जैसा भी होगा एक्सेप्ट तो करना होगा ना मुझे। तो आपको देखें क्योंकि सर क्रिटिकल हमें नॉलेज भी नहीं है और हमारा फर्स्ट टाइम है और वो भी हम लोग ऐसे बगैर किसी की गाइडेंस के कर रहे हैं इस चीज़ को। देखें कि आपको ये क्रिटिकल नोट के हवाले से मुझसे पूछ लेना चाहिए था, मैं आपको बता देता। अभी भी आपको बता दूंगा क्रिटिकल नोट किससे कहते हैं। ठीक है, और एज अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर आपको ये लाजमी मालूम होना चाहिए कि लिटरेचर क्रिटिकल नोट कहते किसे हैं। आज मेरी 12वीं क्लास है, इस माई 12th लेक्चर। आप मुझे लाजमी कहती हैं अगर एक आध लेक्चर करें तो मेरे से बाकायदा एक क्लास रख के आपको बताता। देखिए क्रिटिकल नोट से मुराद ये कि यू हैव टू राइट फ्रॉम क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जांपल द ब्लैक बुक आपने पढ़ा, अब आप जब ब्लैक बुक पढ़ेंगी तो मैं नहीं कह रहा आप पूरा नॉवल पढ़ें भी। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू रीड द इंटायर नॉवल, दो नॉवल इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी और आसान है, लेकिन मैं नहीं कहता पूरा नॉवल। लेकिन कुछ तो नॉवल का हिस्सा आप पढ़ें और आपको अंदाज़ा होगा कि सर ने बताया था कि दिस नॉवल इज़ अबाउट दिस थिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू एंड वी फाइंड दैट द मेन कैरेक्टर जो है वो क्या कर रहा होता है, वो सर्च कर रहा होता है। और दो अहम कैरेक्टर होते हैं नॉवल के, लेकिन वो हम पूरे नॉवल में हमें नज़र नहीं आते और वो आखिर में नज़र आते हैं, इनकी डेड बॉडीज नज़र आती है। तो मतलब आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको बीच में कुछ चीज़ें नज़र आएंगी मज़ीद एक्स्ट्रा, जो आपको समरी से पता नहीं चलेगी। तो आप उसको क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, यानी कि आप उसको लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा अहम है। अब इसमें लैंग्वेज को भी देखा जाता है, इसमें जो है वो जो राइटर इस्तेमाल करता है फिगरेटिव स्पीच उसको भी देखा जाता है। इसके अलावा इसमें राइटर्स के अपने थॉट्स भी होते हैं उसको भी देखा जाता है। कई चीज़ें इसमें होती हैं जो कि हम क्रिटिकल जब चेक कर रहे होते हैं तो उस सूरत में हम देखते हैं। क्रिटिकल मीन्स क्रिटिक के पॉइंट ऑफ व्यू। सो यू आर right now as a critic and you have to assess it, you have to analyze it from that point of view. ज़ाहिर है अब आपकी कैपेबिलिटी वो तो नहीं है जो होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो आपकी अपनी कैपेबिलिटी है, जितना आपके पास नॉलेज है उसके तहत आप उसे पढ़ना तो होगा आपको। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, आप एक जनरल क्रिटिक के तौर पे भी इसको देख सकते हैं। मिसाल पे आपको किसी ने किताब दे दी और आपसे कहा कि यार इसको पढ़ के मुझे बताओ कि आपको क्या समझ में आया, तो आपने उसे पढ़ा और आपने बताया इस किताब के अंदर जो 2-3 कहानियाँ थी बड़ी ज़बरदस्त कहानी थी, एक कहानी में तो बहुत अच्छा सा लेसन मिल रहा था, दूसरी कहानी में इतनी मज़े की नहीं थी, तीसरी कहानी तो समझ ही नहीं आ रही थी। तो आपने उसे अपना एक रिव्यू दे दिया उसे। ठीक है, अब अगर आप कहानी पढ़ने के शौकीन, आपको कहानी का पता है कि कहानी के लवाजमात क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड शॉर्ट स्टोरी और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉवेल, प्लॉट किसे कहते हैं, प्लॉट कैसा होना चाहिए, आपको इन चीज़ों को पता होगा तो आप फिर उसे क्रिटिकल अंदाज से उसके आपके जो कमेंट्स होंगे और रिव्यू होंगे उसकी अहमियत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसकी मिसाल यूँ लेते हैं कि हम जैसे क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं ना, तो क्रिकेट मैच देखने वाला भी क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है और वो बंदा भी क्रिटिसाइज़ करता है जो कभी उस ग्राउंड में खेल चुका हो, जिसको हम क्रिकेटर्स कहते हैं। तो क्रिकेटर्स के जो कमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा अहम होते हैं बजाय इसके कोई एक तमाशाई कमेंट कर रहा हो। ठीक है, तमाशाई को भी नॉलेज होती है क्रिकेट की, लेकिन इतनी नहीं होती और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसको बिल्कुल भी नहीं होता जितना कि एक क्रिकेटर्स को होता है, द वन हु हैज़ ऑलरेडी प्लेड। सो दैट्स व्हाई हिज कमेंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द वन हु ओनली वॉचेस क्रिकेट ऑन टीवी। ठीक है, तो इस तरह से लिटरेचर में भी होता है। देयर आर पीपल हु have done or who have done a lot of reading, who have a lot of experience, who have read many books from different point of view, so their comments are more important and they can give critical comments. And there are people who very seldom read or they are not good at reading, but when they read, so they give their comments. So this is also important, so you can give your comments as a student. So when इंशाल्लाह जब क्लासेस स्टार्ट होंगी या फिर हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर होगा तो उसमें मजीद इस हवाले से आप मुझे याद दिला दीजिए कि आई विल देन टेल यू। ये तो चीज़ें एक्चुअली बेसिक चीज़ें हैं कि व्हाट आर द लिटरेरी कैनन्स एंड हाउ कैन वी क्रिटिकली अप्रिशिएट डिफरेंट पोएम्स। बीएस वगैरह में आपके पास लाजमी आई होंगी कि यार इस पोएम को क्रिटिकली अप्रिशिएट करें, इसको इसकी इंटरप्रिटेशन करें, लाइक दिस। सर अभी तक तो ऐसा कुछ हमें नहीं बताया गया था। बीएस की बात कर रहा हूँ, एमए की नहीं।
देखें आपका एमए का तो सर एक और क्वेश्चन है कि ये जो दूसरा क्वेश्चन था सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रीम, सर ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। हमें सेंटियागो की ड्रीम को नजर में रखे उसके ड्रीम को एक्सप्लेन करना है, उसकी यस सिग्निफिकेंस यस होगी, उसकी लाइफ पे क्या इन्फ्लुएंस आया, या फिर अलग से जो ड्रीम की नहीं नहीं सिग्निफिकेंस होती है वो बतानी है। नो नो सेंटियागो की बात कर रहे हैं हम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेपरेटली ड्रीम। सेंटियागो ड्रीम ही तो देखता है जिसके बेस पर पूरी कहानी जो है मूव कर रही होती है, एंड ही ट्राइज टू फुलफिल his dream and he tells his dream to others and others tell him, give him different types of suggestions। तो हमने सेंटियागो की ड्रीम की बात करनी है, ना कि अपने ड्रीम की या जनरली ड्रीम की बात करनी है, ठीक है, उसकी ड्रीम की बात करनी है। और सर मैं एक बार मुझे दोबारा सवाल समझा दें। ठीक है, इसमें आपके पास जो है ना सेंटियागो कहाँ गया, इसमें ना जो जो थीम है, द थीम ऑफ दिस नॉवेल इज ड्रीम, and when you read the novel, so it begins with dream and it ends with the place where he dreams। जहाँ पे वो ड्रीम देखता है वहाँ पर जाके एंड होता है। तो इससे मुराद ये कि फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड वी हैव दिस एलिमेंट ओवर देयर, सो दिस इज द सिग्निफिकेंस। अच्छा ड्रीम के जरिए वो करता है क्या है, सो ड्रीम व्हेन यू सर ड्रीम के जरिए वो मोटिवेट होता है, उसकी लाइफ चेंज होती है। वो मोटिवेट नहीं होता, ही हैज सम आइडिया इन हिज माइंड और ही गेट समथिंग, he finds something, फिर वो लोगों को बताता है and they tell him, they give him different suggestion, then he follows the line, he follows the track, फिर उस पर चलता है और चलते चलते फिर वो वापस उसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे से वो शुरू करता है। तो ये इट्स ऑल अबाउट ड्रीम, ड्रीम ही उस पर चल रहा होता है। अभी भी आप देखें सर ना मुझे जो इस सवाल का समझ में आया वो ये कि मतलब मैं जो उसका जवाब लिख रही थी तो मैंने ड्रीम का जो इन्फ्लुएंस उसकी लाइफ पे हुआ है मैंने वो लिखा है इस पे। सही लिखा आपने, ठीक है, इट्स फाइन। ये तो सिग्निफिकेंस है उसकी लाइफ पे, उस ड्रीम का क्या असर पड़ा और कैसे लोगों ने उसको उसका साथ दिया। बस ये देखिए लिटरेचर की खूबसूरती ये है कि इसमें एक चीज़ को कई अंदाज से कहा जा सकता है, ठीक है, आप 10 अंदाज से कह सकते हैं लेकिन 10 के 10 अंदाज में आपने जस्टिफाई करना होता है। The beauty of literature lies in it that there is nothing final in literature. Every time you can find something new. One thing can be interpreted in many ways. This is not like mathematics and science where 2 plus 2 is equal to 4. It is, literature which is like a sea, which is like an ocean, and nobody can swim in it, and it's something that has no limit। तो इसीलिए आप इस पे जो भी बात करेंगे बस जस्टिफाई करना होगा आपको। आप टेक्सचुअल रेफरेंसेस जब जस्टिफाई कर सकते हैं या आप उसमें कुछ बता सकते हैं कि भाई मैंने इस जगह पढ़ा था, इससे ये मुझे समझ में आया और मैंने ये किया हो गया। एनी अदर क्वेश्चन, जल्दी बताएं, टाइम कम है हमारे पास, वी हैव ओनली 4 मिनट्स। अच्छा दूसरी बात ये कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग जब अपना असाइनमेंट करें तो काइंडली उसकी प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छी होनी चाहिए। असाइनमेंट की भी प्रेजेंटेशन होती है, यू हैव टू यूज़ फ़ॉन्ट जो साइज़ है वो 12 का होना चाहिए। फ़ॉन्ट लेटर लिख दूँ ये आपको यहाँ पर मेंशन कर दूँ क्या? सर यहाँ पे तो कोई भी नहीं है इस वक्त, से बहुत कम स्टूडेंट हैं। हाँ लेकिन ये मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा ना यूट्यूब पर, तो आप सर वो सुनते कहाँ हैं? अब ये उनका अपना मामला है, उनको देखना चाहिए, नहीं देखेंगे तो उनका नुकसान है। फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो आप देख लीजिएगा या मैं आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है? यस सर। तो ये आप थोड़ा देख लीजिएगा। फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 12 का होना चाहिए। फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो रोमन्स का होना चाहिए। साइडें जो है सर 1 12 बहुत छोटा नहीं है, नजर भी नहीं आएगा। नहीं आ जाएगा। तो किताबों में साइज़ 8 का होता है, 8 और 9 का होता है, ठीक है? तो 12 जो है एक स्टैंडर्ड साइज़ है। तो एप्लीकेशन वगैरह होती है 14 के साइज़ की, अदरवाइज व्हेन यू प्रिपेयर योर नोट्स वो 12 का होता है। लाइन स्पेस जो है वो 1.5 का दीजिएगा, 1.5 का दीजिएगा लाइन स्पेस, ठीक है? ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ साथ में ना, ये देख लीजिए। ये लेट मी शो यू, कैन यू सी व्हाट आई एम शोइंग यू? नज़र आ रहा है नो आपको सर। अभी? नहीं नज़र आ नो। रहा। ओके लेट मी चेंज इट। रिज्यूम न्यू शेयर, अब नजर आ रहा है आप लोगों को? कैन यू सी नाउ? यस सर। अब देखिएगा इसमें ये आपके पास है, ये है आपके पास टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है? आप जो भी लिखेंगे इसमें ये देखें,
ये मैंने मिसाल पर लिखा है, ये इस वक्त 1.5 का स्पेस आ रहा है। ये इस वक्त 1.5 का स्पेस आ रहा है, ठीक है। ये आपने इसका मेंटेन रखना होगा। अच्छा, इसको स्पेस के लिए क्या करना होगा, आप जाएंगे यहाँ पर, कहाँ जाएंगे, यहाँ पर रेफरेंस लेआउट, बल्कि आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पैराग्राफ आएगा। पैराग्राफ के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे 1.5 लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे आफ्टर आपने 0 कर देना है। अब ये 1.5 का स्पेस हो गया। तो आपने असाइनमेंट 1.5 के स्पेस से बनाना होगा और उसकी जो साइडें हैं वो यहाँ से आप एक एक कर दीजिएगा, जैसे टॉप लेफ्ट बॉटम सब एक एक 1 इंच। और पेपर का साइज जो है वो आपने A4 रखना होगा, ठीक है। ये A4 हो गया आपका। काइंडली इसको आप मेंटेन कर लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जस्टिफाई वगैरह कर दीजिएगा। ये थोड़ी कंप्यूटर के स्किल्स आपको आने चाहिए। ओके सर। अगर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन ये कर देंगे तो अच्छा है। अगर आप नहीं भी करेंगे डजंट मैटर, इट विल वर्क। ओके, आई थिंक स्क्रीन शेयरिंग इज थैंक यू सर। इट्स एंडिंग नाउ, ठीक है। वेरी क्विकली इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। तो ये हमारे पास है एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ योर वर्क। एंड 20 तारीख तक आप अपना असाइनमेंट 20 तारीख के बाद भेजना शुरू कर दीजिएगा एंड 24 इज द लास्ट डेट। ओके, और सबको एक साथ और सर जी सर मैडम से भी बात कर ली गया और उसके हाँ वो मैं बारे में। आई विल टॉक टू मैडम। सही, थैंक यू। मैं ग्रुप में, अच्छा इसके अलावा भी कुछ पूछना हो तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप